So yes, yesterday we covered two of the doctrinal foundations. हम लोग ने कल जो है दो सिद्धांतों के विषय में हमने देखा था. What are the two doctrines which we covered yesterday? कौन कौन सा दो सिद्धांत थे जो कल हमने खत्म किए? And और yeah, yes. So today we will cover another two doctrines. आज हम लोग दो सिद्धांतों को में से देखेंगे. Today onwards, all the doctrines are more difficult, more theological. और आज से जो सिद्धांत हम देखेंगे वो थोड़ा और कठिन है, थोड़ा और धर्मशास्त्र की ओर गहराई में जाता है. If we know the Bible very well, if we have been reading the Bible for many years, अगर हम परमेश्वर के वचन को कई सालों से पढ़ रहे हों and if we have listened to a lot of Bible teaching, और ज्यादा से ज्यादा बाइबल के शिक्षाओं को हमने अगर सुना है, then it becomes easier to understand the doctrines. और तब वो सिद्धांतों को समझने में आसान हो जाता है. But if you are new to the Bible and you're not familiar with the Bible, अगर आप बाइबल के प्रति नए हैं and if don't know the scriptures very well, और आपको शास्त्र में से सही रीति से मालूम नहीं है, and also if you have not heard any teaching about doctrines before, या फिर आपने इस सिद्धांतों के बारे में पहले कभी सुना ना हो, then you will find this whole topic more difficult. और ये जो हम सूचियां देखेंगे, ये जो शीर्षकें देखेंगे, वो हमें कठिन लगेगा. For instance, if you turn in your notes to page 18, अगर आपके नोट्स जो है उसमें 18वें पन्ने में अगर अपना ध्यान दें तो over there, we will be talking today about the essence of God and the personhood of God. और आज जो है हम लोग वहां पे परमेश्वर के व्यक्तित्व के बारे में और परमेश्वर के स्वरूप के बारे में हम देखेंगे. Okay, over there the words that are used is the sar of God and the vyaktigat of God. वहां पर सार और व्यक्तिगतता परमेश्वर के विषय में इस्तेमाल किया गया है. So these are all very they are more deeper things to understand. वो जो है और थोड़ी गहराई से समझने वाली बात है. In the same way, on page 21 also, which we will be looking at, और 21वें पन्ना जो आपका है उसमें भी हम देखेंगे. it talks about the essential nature of man. और उसमें है कि मनुष्य के मुख्य गुणों के विषय में. So these are all if you have not heard these things before, you may find it difficult. अगर आपने इस विषय में पहले नहीं सुना है, ये आपके लिए कठिन बन सकता है. It's the same, right? Even in our school. और हमारे स्कूल में भी ऐसी होता है. In the beginning, they will teach us addition, subtraction, multiplication. और पहले जो है हमें गुणन, सब्सट्रैक्शन, घटाना, जोड़ना सिखाते हैं. After that, when we go to higher classes, then they will teach algebra, geometry, and all that. और उसके बाद जब ऊंचे कक्षा में जाते हैं, वहां पर ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इन सब्जेक्टों को सिखाते हैं. So if you don't know the Bible very well, this is like jumping directly to algebra level. और अगर हमको बाइबल नहीं मालूम, इस तरीके से बोल सकते हैं छोटी कक्षा को छोड़कर ऊंची कक्षा की ओर छलांग लगाना. So I have prayed a lot for 1 month. मैंने 1 महीने तक प्रार्थना किया. I have prayed that the Lord will help me to make this subject as simple as possible. और मैंने प्रार्थना किया है कि जितना से जितना इसको सुलभ मैं बना सकूं, उतना मैं सुलभ बना सकूं. So I will try, but if you're not able to understand something, it's all right. और अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी. Everyone will understand at least 50%. सब लोग जो है 50% तो समझ ही जाएंगे. Okay, so God doesn't expect us all to be intellectuals. हमें परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम सब जो है बुद्धि के साथ वाले लोग बन जाए. बुद्धि के साथ, इंटेलेक्चुअल, ज्ञानवान. Adik, too much gyan. Adik gyan. बौद्धिक.
Because you have normal knowledge and you have too much knowledge. आपके पास साधारण तल पे बुद्धि और ज्ञान है और ऊंचे तल पर बुद्धि और ज्ञान है. For instance, if you listen to a sermon from Haggai Ministries, that will be very high. और अगर आप उदाहरण से ले ले तो हगाई मिनिस्ट्री से अगर उनका प्रचार सुनेंगे तो वो बहुत ज्ञान से भरा हुआ रहता है. So not everyone understands everything, and it's okay. और सब लोग सब कुछ समझ नहीं पाते हैं, ठीक है वो. But if you have an eager and open heart, अगर आपके अंदर एक खुला मन है और एक इच्छा भरा मन है, God will speak to you. और परमेश्वर जरूर आपसे बातचीत करेगा. That's something that I have learned throughout my life. और मैंने अपने जीवन के पूरे समय से मैंने ये सीखा है. I went to a theological college where the teaching was too high. और मैं एक धर्मशास्त्र पढ़ाने वाले कॉलेज में गई, वहां पर जो उनकी शिक्षा प्रणाली थी बहुत ऊंचा पैमाने में था. I didn't understand everything that they were saying. और वो लोग जो कुछ सिखाते थे मैं पूरी तरीके से समझ नहीं पाती थी. But because I had an eager heart, God taught me many things. और लेकिन मेरे अंदर एक इच्छुक मन था, इस कारण से मुझे परमेश्वर ने सब कुछ सिखाया. So always remember this important truth. और इसीलिए ये सत्य बात हमेशा याद रखें, God is always more interested in your heart than your mind. और परमेश्वर जो है हमेशा It doesn't stay that way. Is it? It keeps going down again. So, yeah. Yesterday I didn't have that problem, but today it's going on coming down. I think it was the table. Maybe the table was obstructing. Yeah. So God is always, no, now it's perfectly fine. Thanks. God is always interested more in your heart condition than your mind condition. और परमेश्वर जो है मेरी मन की अवस्था पे ज्यादा रुचि रखता है, ना कि मेरे दिमाग की अवस्था से. If your heart is eager and sincere and loves God, God will do great things with you. और अगर आपका हृदय उसके प्रति ईमानदारी से है, इच्छुक मनोभावना से है, तो वो परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से काम करेगा. You may not be the cleverest person, but God will use you. आप सबसे चतुर व्यक्ति नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको इस्तेमाल जरूर करेगा. I was not the cleverest person in that Bible college. और उस बाइबल कॉलेज में मैं सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं थी. But I have learned so many things which God taught me. और लेकिन मैंने कई बातों को सीखा जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया. So with that attitude, let's get into this doctrine of Trinity. और उस सोच विचार के साथ, उस मन की अवस्था के साथ इस त्रित्वत्व के विषय में हम प्रवेश करेंगे. Before we do that, do you have any questions from yesterday's two topics? और कल जो दो टॉपिक हमने शीर्षक देखे थे, उसमें से किसी को भी कोई सवाल? Because yesterday there was no time to ask questions. कल जो है हमारे पास समय नहीं बचा था ताकि हम सवाल और जवाब कर सके. So if you have any questions from those two doctrines, let's cover those questions now. और अगर आपको दो उस शीर्षकों में से कोई भी सवाल हो तो अभी वो समय लेंगे हम, ताकि हम उसको समझ सके. And then we will start the doctrine of Trinity. और उसके उपरांत जो है इस त्रित्वत्व का, नहीं तो त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत को हम देखेंगे. Any questions? कोई भी सवाल? I think girls should always have more questions. मैं ये सोचती हूँ कि लड़कियों को ज्यादा सवाल होना चाहिए. Because girls think, they think carefully. वो देखो, she asked all. Okay, yeah, go ahead with the question. माइक ले लीजिए, आप माइक दे दीजिए पीछे. Good afternoon, ma'am. Ma'am, my question is, yesterday you said that Jesus is the first son. Begotten and, son. And David also. You said that it is a legal term, but I never understood that. Or the second thing is, if I want to explain someone, how should I explain it? Okay, maybe you can in the question, ma'am is asking about what is the meaning of firstborn. और ये सवाल पूछा जा रहा है कि
इस नोट्स में हमने जब पढ़ा उसके सवाल के हिसाब से पहलौटा होने का मतलब क्या है। Okay, so let us use an example of a Israelite family in those days. उस समय के समय पर जो इजरायली परिवार थे उसमें से एक उदाहरण हम देखते हैं। Let us say a man had two sons. और हम कहते हैं ऐसा कि एक आदमी को दो बेटे थे, So you'll have the elder son and the younger son. और बड़ा बेटा और छोटा बेटा। The first son will be called firstborn, और पहला बेटा को क्या बोलेंगे? पहला बेटा, मतलब पहलौटा। and then he will, when he grows up, the property, the land, the majority of the wealth will come to him. और वो जो है उसके पास जो है बड़े बेटे के पास में धन संपत्ति जो कुछ आए है पिता का वो सब उसके पास आएगा। So he is basically called the firstborn. उसको साधारण तरीके से देखा जाए, नियमित तरीके से देखा जाए, उसको पहलौटा बोलेंगे। But if the father wants to, he can make the second person firstborn. और अगर पिता चाहे तो दूसरे बेटे को पहले का जगह दे सकते हैं। So he will become the pehlauta. The second boy will become the pehlauta. और जो दूसरा बेटा है, दूसरे नंबर का बेटा है, वो पहलौटा बन जाएगा। So the father can decide whom he wants to give the legal benefits. और इसीलिए जो पिता का निर्णय है कि नियम अनुसार जो किसको वो पहला स्थान दे। So the legal position of pehlauta can be given to whomever the father wants to give it to. और पिता जिस किसी व्यक्ति, इस दो बच्चों के बीच में जिस किसी को पहला स्थान देना चाहते हैं वो पिता का निर्णय है। So God the Father decided that he is going to give all of creation to Jesus. और परमेश्वर पिता ने ये निर्णय लिया कि ये सारी सृष्टि जो है यीशु के हाथ में दे देंगे। And so that is why Jesus is given that legal term pehlauta. इसीलिए नियमित के अनुसार कानूनी तरीके से उसको पहलौटा करके बुलाया जाता है। And now let's come to the example of David. दाऊद के जीवन में देखेंगे। David was not the firstborn in his family. और उसके परिवार में वो पहला संतान नहीं था। He was in fact the last son. और वो जो है आखिरी बच्चों में से पैदा हुआ वाला एक बच्चा था। His father did not think that he's important at all. और उसके पिता ने भी इसका सोचना था कि ये इसका बड़ा मूल्य नहीं है। But God said, you know what? I will make you firstborn. लेकिन परमेश्वर ने ये निर्णय लिया कि मैं तुम्हें दाऊद पहला स्थान में लेके आऊंगा, माने पहलौटा बनाऊंगा। So it's a legal, pehlauta is a legal term. और वो जो पहलौटा इसमें आता है, इस संबंध में आता है, वो कानूनी तरीके से एक शब्द है। But Muslims, they argue and they say, see in the verse it says that he is the firstborn over creation. और मुस्लिम्स ये तर्क वितर्क करते हैं कि देखिए आपके बाइबल में ये यीशु जो है पहलौटा के समान आता है। So they say, oh look, it says over here that he was born. और वो लोग ये तर्क करते हैं कि ये तो है यीशु जो है परमेश्वर नहीं, ये पैदा हुआ था। But they don't realize that that word pehlauta is not talking about physical birth. और वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो पहलौटा का जो शब्द इस्तेमाल किया है वो शारीरिक जन्म के बारे में हो। It's talking about legal term, nothing to do with physical birth. और वो शारीरिक जन्म के विषय में कुछ भी संबंध नहीं रखता, अन्यथा वो एक नियम के अनुसार नहीं तो I forgot the term, see, नियम, और नियम के अनुसार वो शब्द को इस्तेमाल किया गया है। कानूनी. Does that help? Is it more clear now? समझ में आया कि अभी थोड़ा बहुत how to explain others those things when they ask a question? You can say that it is a legal term and then give the explanation which I gave now. We read out the verses yesterday, that verse in which God says, I will make you the firstborn. I don't have those notes with me now, but it's there in the lecture which I told. In your class notes, it may not be there, but in the lecture which I gave,
I mentioned the reference. और जो भाग लिया था हमने, इस आपके नोट्स में नहीं है, लेकिन मैम के लेक्चर नोट्स जो प्रिपेयर किए हैं उसमें जो हमने कल देखा था उसमें वो परमेश्वर के वचन में से था, जहां पर वो दर्शाता। अगर आपने लिखा होगा वो वचन तो आपको शायद वो मिल जाए। So if you While hearing your last time, I assume that you did very hard work for us. Just whatever notes you are saying to us, share with them. So it's good for us to read Your lecture notes to be, if you can share. all the lectures. Great help for us. I have a lot of material and then I choose what I want to tell and what not to tell. So it's like a lot of lecture material and I use it in different places. What you can do is, refer to the videos. And then after listening to the video, you can create your own set of notes. Because I don't have a special set of notes for this class, I have a large set of lecture notes. So I don't have any specific set of notes for this particular class. But the videos, if you can go through and create your own notes, that will be like an additional learning. It would be helpful. Yeah. So yeah, sister, yesterday we gave the reference for I mentioned it and somebody read out that verse in which God says, I have appointed you and you will be the firstborn. But right now I do not have the reference. Or if somebody can look up in Google, it will just plainly, very easily, you can say David firstborn Bible verse, it will show you. It's अगर गूगल quite में आप easy. ढूंढना चाहते हैं, ढूंढ सकते हैं ऐसे लिखकर कि दाऊद जो पहलौटा करके अगर आप डालें तो उसमें मिल सकता है। So, okay, Psalm 89 verses what? So, all right. So, okay. All right, we are starting Doctrine of Trinity a little late, but let's get started. हम लोग जो है ये त्रिएक परमेश्वर के सिद्धांत के बारे में शुरू करेंगे और थोड़ा सा धीरे शुरू करेंगे। Let's start off with an example. Long ago, I read a missionary story about some missionaries who had gone to a very remote tribal area. और मैंने कुछ अरसों पहले एक मिशन कहानी पढ़ा था, जो कुछ सेवक थे जो कुछ जगह पर गए थे जो बहुत भीतर था। They were a very backward tribal community. और वो एक आदिवासी गोत्र था जो बहुत ही पिछड़ा था। So the missionaries were working among them for many years and many people began to become believers. और वो जो सेवक लोग थे वो लोग इस प्रजाति के साथ काम करना शुरू किया और कई लोग जो है मसीह में आना शुरू हुआ। So they began to translate the Bible into their tribal language. और ये सेवक लोग ने क्या किया, अगुओं ने क्या किया कि उनने उनकी जातीय रीति से वो बाइबल को अनुवाद करना शुरू किया। And then they had to translate Isaiah chapter 1 verse 18. और उनका ये समय आया कि आइज़ाया चैप्टर 1 अध्याय 1 उसका 18 को अनुवाद करना था। So if someone can read out for us Isaiah 1:18. अगर आप में से कोई पढ़ सकता है तो अच्छा होगा। आइज़ाया 1 का 18। Yeah, so in this verse, God tells the people that even if your sins are like scarlet, they shall be white as snow. और उसके इस वचन के अनुसार ऐसा है कि अगर तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, वो हिम के समान सफेद हो जाएंगे। The missionaries were very confused how to translate this verse into the tribal language. और वो आदिवासी जो
गोत्र है, उनके भाषा में उनको मालूम नहीं, समझ में नहीं आया कि इसको कैसे अनुवाद किया जाए। Because the tribals have never seen snow, they don't know what snow is. और क्योंकि उन लोगों ने हिम को कभी देखा नहीं था, इस कारण से उनको नहीं मालूम उनको कैसे समझाएं ये है क्या चीज। So they try to explain, if you take water and if you make it solid, that is snow. और उनने ऐसा उदाहरण समझाने की कोशिश किया, अगर आप पानी को ले लो और उसको बर्फ जैसा बना दो तो वो उस तरीके से होता है हिम। So, but they didn't understand. They said, how can water become solid? और वो लोग ये पूछने लगे कि पानी कैसे पत्थर जैसा बन सकता है। And so they had to use some other words to do the translation for that verse. और कुछ और शब्द को उन लोगों को इस्तेमाल करना पड़ा ताकि इसका अनुवाद कर सके। Then about 1 year later, when the missionaries were going back to Europe, they took one of the tribals with them. और एक बार जब अपने यूरोप में वापस अपने घर की ओर जा रहे थे, तो उस आदिवासी गोत्र के अंदर से एक व्यक्ति को उनके साथ लेकर जाते हैं। That man, for the first time, with his own eyes, he saw solid water. और उसकी आंखों, स्वयं उसकी आंखों से पहली बार उस आदमी ने पानी को एक ठोस is the ठोस- Google word. ठोस रूप से देखा। Okay, so then when he went back to his village, he told, it's true, water can become solid. और उसके बाद जब वो व्यक्ति, आदिवासी व्यक्ति अपने गांव को वापस जाता है, तब वो बोलता है, हाँ सच में पानी जो है ठोस पत्थर के समान बन सकता है। So understanding the Trinity is something like that. और त्रिएक एक विषय में, परमेश्वर के त्रिएकता के विषय में, नहीं तो तृत्व के विषय में समझना भी ऐसी कुछ है। We can try to explain it and try to understand it. हम उसको ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश और ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश कर सकते हैं, But only when we are standing in heaven and looking at the throne of God, we will really understand what is Trinity. और जब हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और उस परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, तभी हम उनको अपने आंखों से देखेंगे, तभी समझ पाएंगे ये तृत्व नहीं तो त्रिएक के विषय में। Because in the Bible, that word Trinity is not mentioned. क्योंकि त्रिएक नहीं तो तृत्व जो शब्द है उसको शास्त्र में इस्तेमाल नहीं किया गया है। But in the New Testament, you see many verses which talk about the three persons of the Godhood. और नए नियम में आते हैं तो हम देखते हैं कई जगहों पर परमेश्वर जो तीन एक है, जो तीन विभिन्न प्रकार से कार्य करता है, उसके बारे में लिखा हुआ है। It's not just Karya, his three persons. तीन one व्यक्तित्व God in- के तीन व्यक्तित्व में दिखा जा सकता है। Okay, yeah. So in even in the Old Testament, we have some references to the Trinity. और हम पुराने नियम में भी कुछ बातों को वचन में से देख सकते हैं। In Genesis 1:26, God says, "Let us make man." और जेनेसिस में उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि उसमें परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर बोलते हैं, आओ हम मनुष्य को बनाएं। So over there he says hum. He doesn't say मैं. He doesn't say singular. He uses plural. और वहां पर वो एक नहीं, एक रीति से नहीं बोलते, बोलते एक साथ, नहीं तो पुल्लिंग। So in on page 17 of your notes, those verses are written. और 17वां पन्ना जो है आपका, उसमें वो भाग लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर से। So Genesis 1:26, God says, "Let us make man." उसमें उत्पत्ति 1:26 में लिखा हुआ है, आओ हम मनुष्य को बनाएं। In Genesis 3:22, the Lord says, "Man has become like one of us." और उत्पत्ति 3:22 में लिखा है कि मनुष्य अब हमारे समान बन चुके हैं। So he doesn't say मेरे समान, he says हमारे, plural. और वहां पर जो है एक के बारे में नहीं कहा गया है, जो पुल्लिंग के विषय में कहा गया है। Pulling would be just male, or is it plural? Pulling is male, but plural is another word. I didn't look up Google for that. बहुवचन, Yes. बहुवचन। Bahuvachan. Perfect. Again in Isaiah 6:8, it says,
whom shall I send? Who will go for us? और ऐसा 6:8 में लिखा हुआ है कि कौन हमारे लिए जाएगा और कौन किसको हम भेजें. Okay, it says, whom shall I send? Hmm. Who will go for us? Plural. मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा. You know, so even in the Old Testament, you see verses where it talks about God in the plural. और वहां पर बहुवचन के रीति से परमेश्वर के विषय में लिखा गया है. Isaiah 9 verses 6, 7. Okay, if someone can read out Isaiah 9 verses 6 and 7. ऐसिया 9 का 6 और 7 कोई पढ़ दें. Yes. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। Now, whom is this passage talking about? ये किस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है. Is it talking about David? दाऊद के बारे में. It's talking about Jesus Christ. और ये जो है यीशु मसीह के विषय में कहा जा रहा है. Look how Jesus Christ is described in verse 6. और 6वें पद में देखें यीशु मसीह को किस प्रकार से वहां पर दर्शाया गया है. Jesus is called mighty God. और वहां पर यीशु को सर्वशक्तिमान कहा गया है. Mighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहा गया है. He is also called everlasting Father. उसको जो है अनंत काल का पिता के रूप में कहा गया है. So Jesus is also called Father. वहां पर यीशु को पिता का स्थान दिया गया है. So we see that God is not just Father, Jesus is also Father. और can you come again? Yeah, we see that only, the Old Testament Yahweh is not Father, even Jesus is also Father. और वहां पर देखते हैं कि याहवे जो पुराने नियम में इस्तेमाल किया गया है वही सिर्फ पिता नहीं, यीशु को भी पिता का स्थान दिया जाता है. So God is one, but in 3 persons. परमेश्वर एक है लेकिन 3 व्यक्तित्व में. That's very correct. Coming to the New Testament, let's look at a verse which talks about the Trinity. और नए नियम में आएंगे जहां पर तृत्व या त्रिएक परमेश्वर के बारे में बताते हैं. 1 Peter 1 verse 2, if someone can read out. पहला पत्रोस 1 का 2 अगर कोई पढ़ दे तो. पहला पत्रोस 1 का 2. और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। Okay, so here we see God the Father being mentioned, the Spirit is mentioned, and also Jesus Christ is mentioned. और यहाँ पर हम देखते हैं पिता परमेश्वर के बारे में है, पिता परमेश्वर पुत्र के बारे में है, परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में भी है. So based on this, what did Jesus say about Trinity in the New Testament? और इस पर आधार करके यीशु मसीह तृत्व के बारे में नहीं तो त्रिएक परमेश्वर के बारे में क्या बोलता है. In Mark chapter 12, मरकुस 12 में one man comes to Jesus and asks him, which is the most important commandment? और वो आदमी यीशु के पास आके पूछता है सबसे मुख्य वाचा क्या है. And at that time, Jesus, he quotes from Deuteronomy and he says, the Lord our God, the Lord is one. और वहां पर वो यीशु मसीह जो है व्यवस्था विवरण से लेकर आधार लेकर बोलता है परमेश्वर जो है एक है.
So Jesus clearly says that God is one. और वहां पे यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर एक है। And then if you go to Matthew chapter 6 verse 26, अगर मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 26 में हम देखेंगे, he calls this one God as Heavenly Father. और इस एक परमेश्वर को वो स्वर्गीय पिता करके पुकारता है। And then in John 10:30, और यूहन्ना 10 का 30 में, what does he say? If someone can read out, John 10:30. यूहन्ना 10 का John 10:30. 30 10 का 30। और मैं पिता एक है। Okay, so over there, even though he calls God Father, he also says the Father and I are one. और वहां पर वो यीशु मसीह जो है पिता परमेश्वर पुकारता है, फिर भी वो कहता है मैं और मेरा पिता हम एक हैं। So which means even though God is one, there seem to be two persons. और यहाँ पर दो दिखते हैं लेकिन वो एक है। And then what about the Holy Spirit? पवित्र आत्मा के विषय में क्या? You might have covered this when you were studying the Holy Spirit topic. और आप जब पवित्र आत्मा का अध्ययन कर रहे थे तो आपने इसमें से देखा होगा जरूर। John 14:16. यूहन्ना 14:16 If someone can read out. पढ़िएगा जरा। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। Here it says, Jesus is talking about, okay, here Jesus talks about the Holy Spirit and he says, he will give you another advocate. और यहाँ पर जो है यीशु मसीह बोलता है कि तुम्हें एक सहायक दिया जाएगा। So he says, एक और सहायक दिया जाएगा. और वहां पर लिखा है कि एक और सहायक तुम्हें दिया जाएगा। Now in the Greek language, there are two words for एक और. और यूनानी भाषा में एक और के विषय में दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। The first Greek word for एक और is आलोस. और यूनानी भाषा में एक शब्द में से एक है आलोस। आलोस means एक और आलोस का मतलब है एक और। But it's talking about एक और of the same type, the same kind. और वो एक और के विषय में जब बोला जाता है वही पहले था जैसा है उसी समान। Okay, from Google what I wrote down is एक और समान प्रकार का. That's what I said. Okay, so आलोस means एक और समान प्रकार का, दूसरा प्रकार अलग प्रकार का नहीं, same प्रकार, same type और एक. So Jesus says over here, ALLOS. Okay. ALLOS. So Jesus says in John 14:16, यूहन्ना 14 का 16 में ऐसे कहा गया है, the Father will give you एक और सहायक. और परमेश्वर जो है पिता है वो एक और तुम्हें सहायक भेजेगा। So एक और of the same type. और एक ही समान एक और सहायक। Now there is another word also in Greek for एक और यहाँ पर यूनानी भाषा में एक और शब्द है एक और के विषय में। That is the word heteros. वो शब्द है हेट्रोस। HETEROS. हेट्रोस। HETEROS. Okay, so that is talking about एक और of a अलग प्रकार, different type. और यहाँ पर इसमें हेट्रोस का मतलब ये है तुम्हें एक और व्यक्ति दिया जाएगा जो अलग प्रकार का रीति का होगा। That word is not used in John 14:16. और उसको यूहन्ना 14 के 16 में इस्तेमाल नहीं किया The गया। word used in John 14:16 is alos, same प्रकार, same type. और यूहन्ना 14 का 16 में जो पद इस्तेमाल किया गया है, शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो है आलोस। So Jesus is saying, I will go back to the Father, but you will get someone who is exactly like me. और वो कहता है कि मैं पिता परमेश्वर के पास जाऊंगा और मेरे ही समान किसी और व्यक्ति को भेजेंगे।
So the one who comes will be exactly the same type as me. और जो व्यक्ति तुम्हारे पास जो आएगा तुम्हारे पास मेरे ही प्रकार नहीं तो समान होगा। Okay, so the Holy Spirit and Jesus are exactly the same type. और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा जो है एक ही समान है। Okay, so if we were to let us use an example to understand this word alos. और इस आलोच शब्द को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे। Let us say that I'm standing over here holding an apple. और ऐसा सोच लें आप कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ एक सेब हाथ में पकड़ कर, I'm holding a Shimla apple. और मैं शिमला जो सेब है उसको पकड़ी हूँ। And then I say to sister, please, can you get me one more apple? और मैं बहन से बोलती हूँ कि बहन मेरे लिए एक और सेब लेके आ जाओ। एक और सेब. I'm asking for alos सेब, एक और सेम प्रकार का. और मैं उस जगह पर आलोच शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ कि ये सेब है इसी प्रकार का, इसी समान। Now, if sister brings me, in our Karnataka we have Chikbadapur apple. So if sister brings me Chikbadapur apple, I will not be happy. और अगर बहन जो है चिकबल्लापुर के जो सेब उगता है वो सेब लेके आ जाए तो मैं खुश नहीं होंगी। Because that is not alos सेब. क्योंकि वो जो है मेरे हाथ में जो है उसके प्रकार नहीं है। It's a hetero सेब. वो जो है हेट्रोस है, आलोस नहीं। So if she brings me Shimla apple, then I will be happy because it's the same type. और अगर वो मेरे लिए शिमला जो सेब है उसको लेके आए तो मैं खुश होंगी क्योंकि वो एक ही समान है। So Jesus very clearly says that the Holy Spirit and he are exactly the same type. और यीशु मसीह कहता है कि वो और पवित्र आत्मा एक ही समान है। So let's look at a few more verses. हम कुछ और परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। If someone can read out 1 Corinthians chapter 3 verse 16. पहला कुरिन्थियों 3 का 16 कोई अगर पढ़ सकता है। पहला कुरिन्थियों 3 का क्या 16। तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? It says over here that we are God's temple. यहाँ पर लिखा गया है कि हम परमेश्वर की मंदिर हैं। And now let's look at 1 Corinthians 6 verse 19. और अब आगे देखेंगे पहला कुरिन्थियों 6 का 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? So in the first verse, it says that we are God's temple. और पहले वचन में हमने जो पढ़ा उसमें लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। In the next verse, we saw that we are the temple of the Holy Spirit. और दूसरे में देखते हैं कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। So God and the Holy Spirit are same. और परमेश्वर और पवित्र आत्मा जो है एक समान है। So I can say that I am the temple of God. हम ऐसा कह सकते हैं हमारे बारे में कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। But I can also say I am the temple of the Holy Spirit. और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। Because God and Holy Spirit are the same. क्योंकि परमेश्वर और पवित्र आत्मा जो है एक है, एक समान है। They both are divine. और वो दोनों अलौकिक है। Divine is that? अलौकिक। So when we are praying, whom should we pray to? और जब हम प्रार्थना करते हैं किससे हमें प्रार्थना करना है? Should I pray to the Father or should I pray to Jesus or should I pray to the Holy Spirit? और जब मैं प्रार्थना करूं तो क्या पिता से प्रार्थना करूं या पुत्र से प्रार्थना करूं या पवित्र आत्मा से प्रार्थना करूं? We look at one verse in the Bible. हम एक परमेश्वर के वचन में से एक वचन देखेंगे। Ephesians chapter 2 verse 18. एफेसियों की पत्री 2 का 18। एफेसियों 2 का 18। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। So in this verse it says that we have pahunch to the Pita, to the Father. और उसमें उसके हिसाब से लिखा हुआ है कि हमारे पास पिता के पास पहुंचने का एक साधन है। So generally we pray to the Father.
सामान्य रीति से देखा जाए तो हम पिता से प्रार्थना करते हैं because we are pahunching him, we are going to him. क्योंकि हम उसके पास पहुंचते हैं, But we do it through Jesus, लेकिन हम पहुंचते यीशु के द्वारा, with the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा। So when we are praying, the Holy Spirit helps us how to pray, what to pray. और जब हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है किस प्रकार से प्रार्थना करें, कैसे प्रार्थना करें। And we pray to the Father through Jesus, in the name of Jesus. और हम पिता से प्रार्थना करते हैं यीशु के द्वारा और यीशु मसीह के नाम के द्वारा। The reason that God the Father listens to us is because of what Jesus did on the cross for us. और यीशु मसीह परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को इसलिए सुनता है क्योंकि यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस पर किया। So because of what Jesus did, God listens to us. क्योंकि यीशु मसीह ने जो किया उस कारण से पिता हमें सुनता है। Okay, so, but if by mistake, if you pray to Jesus or to the Holy Spirit, God doesn't mind. और अगर आप गलती से भी यीशु मसीह से प्रार्थना करो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। There is no competition between the Father and the Son and the Holy Spirit. और यहाँ पे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच में एक प्रतियोगिता नहीं है। So it's all right. If you pray sometimes to Jesus also, it's okay. अगर आप कभी यीशु मसीह से भी प्रार्थना कर लिए तो चलेगा। But basically, this is the doctrinal understanding of how to pray. और ये है सिद्धांतिक रीति से समझना किस प्रकार से हम प्रार्थना करें। Okay, so yeah. I pray, Hmm. pray, Father, in the name of Jesus, Yes. with the help of Holy Spirit. Hmm. But after praying, I will say Amen. God is not very legalistic. I don't know the Hindi word for that. वो He's not very कानूनी, he's not very strict about वो rules. बहुत Rules के बारे में बहुत strict नहीं है. Because he looks at the heart. For God, most important thing is what is the condition of my heart. और वो हमारे हृदय को देखता है। If your heart is sincere and you respect God, God will accept your prayer. और अगर आपके मन के अंदर ईमानदारी है तो प्रभु जरूर आपको उसमें सम्मान, आपकी प्रार्थना में सम्मान देगा। Because when we become Christians, we are not expert Christians, क्योंकि हम जब मसीह बनते हैं हम पूर्ण नहीं हैं, We learn slowly, step by step. और एकाएक करके हम जो है सीखते हैं। So maybe new believers will not even know the correct way to pray. और नए विश्वासी लोगों को तो सही रीति से प्रार्थना करना भी नहीं जानते हैं। Maybe they will say, "Hi, God." हो सकता है वो परमेश्वर को हाय बोल दें, But if their heart is pure and they love God, God will hear. अगर उनका हृदय सच्चा है, ईमानदार है, तो परमेश्वर उनकी बातों को सुन लेगा। God doesn't look even at our actions too much, actually. और हमारे जो कार्य है, हमारे तरीके हैं, उसको परमेश्वर ज्यादा ध्यान नहीं देता। He looks at the heart. For him, heart is very important. और वो हमारे हृदय को देखता है और वो बहुत मुख्य बात है। Because inside the heart, you have greed and jealousy and pride. और हमारे हृदय के अंदर ईर्ष्या, क्रोध और दंभ है। So he looks at the condition of the heart. वो हमारे हृदय की अवस्था को देखता है। So for him, if we are doing anything with a sincere heart, it's all right. और अगर हम उसके प्रति कोई भी कार्य ईमानदारी के साथ कर लें तो वो उसके लिए मुख्य है। Okay, so on page 17 of your notes, 17वें पन्ने में आपके नोट्स के अंदर it gives a 3-point summary of the Trinity. और वहां पर जो है 3 रीति से एक संक्षिप्त रीति से त्रित्व के बारे में बताते हैं। It's called Saransh, I think, if I remember. So the first point is God is 3 persons. और वहां पर है कि परमेश्वर 3 व्यक्ति है। You see, God sent Jesus into the world. परमेश्वर ने यीशु को इस धरती पर भेजा। So if the Father sent Jesus, then that means there are 2 persons. अगर परमेश्वर ने पुत्र को भेजा, उसका मतलब है कि यहाँ पर 2 व्यक्ति है। And then if you look at
Acts chapter 2 verse 33. प्रेरितों का काम 2 वर्स 33. Acts 2, 33 में अगर हम पढ़ेंगे, there it says that Jesus will receive the Holy Spirit from the Father and send him to us. और उसमें है कि यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा को परमेश्वर से प्राप्त करेगा और हमारे लिए और भेजेगा। So that means now there are 3 persons. उसका मतलब है कि यहाँ पर 3 व्यक्ति है So, and there are 3 separate persons. और वो 3 अलग व्यक्ति हैं। Okay, so that's the first point. वो पहला The, अंक है। the second point over there it says each person is fully God. और वहां पर है कि दूसरा पॉइंट है कि तीनों व्यक्ति पूर्ण रूप से परमेश्वर हैं। If someone can read out Philippians chapter 1 verse 2. फिलिपियों की पत्री 1 का 2 कोई अगर पढ़ दे तो अच्छा है। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। It says over here that God our Father, the Father is being called God. और यहाँ पर परमेश्वर को पिता करके बोला गया है। So the Father is God. और पिता जो है वो परमेश्वर है। If you look at Titus chapter 2 verse 13. तीतुस 2 का 13, right? Titus 2:13. तीतुस 2 का 13 अगर हम आप देखें, How is Jesus described over there? If someone can read out. और यीशु मसीह को किस प्रकार से वहां पे दर्शाया गया हम समझ सकते हैं, पढ़िएगा। तीतुस का किताब आखिरी नए नियम के आखिरी भाग में है। कितना अध्याय? 3 का 33, 2 का 33। उस धन आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। Here Jesus is called our great God. और यहाँ पर यीशु को महान परमेश्वर कहा गया है। So Jesus is also fully God. और पूर्ण तरीके से यीशु मसीह भी परमेश्वर है। And then when you go to Acts chapter 5, प्रेरितों के काम 5 में जब हम जाते हैं, over there Peter is talking to Ananias and Sapphira. और वहां पर अन्निया और सफीरा के साथ पतरस बातचीत कर रहा है। And over there he says, you have lied to the Holy Spirit. और वो पतरस कहता है कि तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। In verse 3 he says, you have lied to the Holy Spirit. तीसरे पद में लिखा हुआ है कि वो पतरस बोलता है कि तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। But then in verse 4 he says, you have lied to God. और चौथे में कहा गया है कि तुमने परमेश्वर से झूठ बोला है। So God and the Holy Spirit are both fully God. और पवित्र आत्मा और परमेश्वर दोनों पूर्ण रीति से परमेश्वर हैं। However, okay, we'll continue after the break. एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।